جلسوں میں آیا کرو. انہی جلسوں میں آ کے تمہیں آقا کے طریقہ معلوم ہوگا کہ میرے آقا کا چلنا کیسا ہے, میرے آقا کا اٹھنا کیسا ہے, میرے آقا کا سونا کیسا ہے. اور انہی مدرسوں کے قریب ہونے کی کوشش کرو. مولانا سلیمان صاحب قبلہ اور ان کی پوری ٹیم کی محنتیں ہیں. آج دارالعلوم محمدیہ حنفیہ سے 4 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. یہ ان کی پوری ٹیم آپ کو تو حافظ دے رہی ہے, الحمدللہ تو قاری دے رہی ہے. میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ایک عالم دین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. لوگ اپنے بچے کو انجینئر بنا رہے ہیں, لوگ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں, لوگ اپنے بچے کو پائلٹ بنا رہے ہیں. صرف اور صرف ان کی سوچ یہ ہے اگر حافظ بنا دیا تو 10-15 ہزار روپے کمائے گا, خرچ پورا نہیں ہو پائے گا. اگر عالم بنا دیا تو خرچ پورا نہیں بنا ہو پائے گا. آج کا انسان, ایک باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے بناتا ہے کہ وہ جب ڈاکٹر بن جائے گا 50-60-70 ہزار روپے مہینے میں کماتا ہوا نظر آئے گا. لوگ اپنے بچے کو ماسٹر اس لیے بناتے ہیں کہ اچھی سے اچھی نوکری لگے گی, 70-80 ہزار روپے لے کر آئے گا. آج لوگ پائلٹ اس لیے بناتے ہیں, لاکھوں سے اللہ اکبر مسلمانوں, لاکھوں روپے مہینے میں آئیں گے. لیکن آج تم نے حافظ قرآن کو ہلکا سمجھا ہے, ایک عالم دین کو ہلکا سمجھا ہے. لیکن ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے, حافظ قرآن کا مقام کیا ہے. خدا کی قسم, جب تیرا انجینئر بیٹا مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی ڈگری دنیا میں رہ جاتی ہے. جب تیرا ماسٹر بیٹا مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی ڈگری دنیا میں رہ جاتی ہے. جب تیرا ڈاکٹر بیٹا مرتا ہے مرنے کے بعد اس کی ڈگری دنیا میں رہ جاتی ہے. لیکن خدا کی قسم, جب ایک عالم دین کا انتقال ہوتا ہے, عالم دین دنیا میں بھی عالم دین ہے, بعد مرنے کے قبر میں بھی عالم دین ہے. اور جب قیامت کے دن عالم دین کو قبر سے اٹھایا جائے گا تب بھی وہ عالم دین ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن دستار بندی مولانا محمد ہاشم القادری صاحب قبلہ. لوگو, اللہ نے اگر بیٹے دیے ہیں تو کم سے کم ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دو, عالم دین بناؤ. آج تم انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو کہ یہ تو غریب کے بچے ہیں, یہ تو غریب ہیں, یہ تو پھٹا پرانا لباس پہنتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فمن اکرمہم فقد اکرمنی. اللہ کے نبی فرماتے جس نے حافظ قرآن کی عزت کی اس نے گویا میری عزت کی. جس نے حافظ قرآن سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. اس لیے اپنے بچوں کو حفاظ بنا دو, اپنے بچوں کو قاری بنا دو, اپنے بچے کو عالم بنا دو. آج تمہیں ان کے مقام و مرتبے کا معلوم نہیں. آؤ میں آقا کی حدیث کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ان حفاظ اکرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے, یہ علماء بیٹھے ہیں, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. حدیث پاک سنیے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو, اگر تم دنیا میں جنتی انسان دیکھنا چاہتے ہو, اگر تم دنیا کے اندر جنتی لوگ دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا کے اندر قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لیا اس نے جنتی کو دیکھ لیا. جس نے دنیا کے اندر کسی عالم دین کو دیکھ لیا اس نے دنیا میں جنتی انسان کو دیکھ لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ مقام و مرتبہ ہے ان علماء کا, یہ شان ہے ان حفاظ اکرام کی, ماشاءاللہ. یہ مقام ہے ان مدرسے کے طلبہ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھنے والے کو دیکھا, کسی عالم دین کو دیکھا, گویا اس نے دنیا میں جنتی انسان کو دیکھ لیا. اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن آج ہماری توجہ نہیں ہے, آج ہم اللہ اکبر قرآن سے دوری بنائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ہمارے گھر میں قرآن تو رکھا ہے لیکن کب کھلتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, کب کھلتا ہے جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے, کب کھلتا ہے رمضان کے مہینے میں کھلتا ہے, کب کھلتا ہے جمعے کے دن کھلتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے گھر قرآن تو رکھا ہے لیکن ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. لیکن آؤ ذرا سنیں, شاید تم یہ بھول گئے یہ وہی قرآن ہے. اسی قرآن کی خاطر کربلا کے میدان میں میرے آقا امام حسین نے علی اصغر کو قربان کر دیا. اسی قرآن کی خاطر علی اکبر کو قربان کر دیا. اسی قرآن کی خاطر حضرت قاسم کو قربان کر دیا. ارے اسی قرآن کی خاطر میرے حسین نے کربلا
کربلا کے میدان میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اور جب جان کو قربان کر دیا یزیدیوں نے میرے حسین کے سر مبارک کو نوک نیزہ پہ رکھا، تو یزیدیوں نے دیکھا حسین کا سر کٹ گیا، لیکن پھر بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ یزیدیوں کا بیان کہتے ہیں جب ہم نے کان لگایا تو پتا چلا حسین کا سر کٹ گیا، پھر بھی حسین سر کٹنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، اے لوگوں، دستار بندی ماشاءاللہ۔ علماء سے قریب ہونے کی کوشش کرو، علماء سے محبت کرنے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کرو۔ ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا جب تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو گے، آپ نے اپنی آنکھوں سے کچھ جگہوں پر دیکھا ہوگا، اور یہ بھی دیکھا ہوگا جو اپنے بچے کو ڈاکٹر یا ماسٹر یا انجینئر بنا دیتا ہے، اور جب انجینئر کے باپ کا، ڈاکٹر کے باپ کا، ماسٹر کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، اس کے باپ کا جنازہ سجایا جاتا ہے، نماز جنازہ کے لیے صفوں کو بنایا جاتا ہے، یہی انجینئر بیٹا دور سے اجازت دیتا ہے، امام صاحب میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو، یہی ڈاکٹر بیٹا دور سے اجازت دیتا ہے، امام صاحب میرے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ لیکن خدا کی قسم اگر تم نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہوگا تو پھر اس سے اجازت دینے کی ضرورت نہ پڑے گی، حافظ قرآن بیٹا صفوں کو چیرتا ہوا آئے گا اور آ کر کہے گا امام صاحب میں اپنے باپ کی نماز جنازہ خود پڑھا دوں گا۔ اے لوگوں، جتنے دل سے خود کا سگا بیٹا اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے گا، کوئی مسجد کا امام اتنے دل سے دعا لے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا اور اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، سورہ رحمان پڑھے گا، سورہ بقرہ پڑھے گا، سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، دریائے رحمت کو جوش آئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں یہ جو میرا بندہ قبر میں آیا ہے اس کا بیٹا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے باپ کی قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنا دو۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ، دارالعلوم محمدیہ حنفیہ میں بھیجنے کی کوشش کرو، اور جب تم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلاؤ گے تمہارے گھر سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، تمہاری بستی سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا، تمہاری بستی سے خدا کی قسم ہر خرافات دور ہو جائے گی۔ آج ہمارے گھروں میں خرافاتیں ہیں، ڈی جے باجوں کی محفلیں ہیں، اس لیے ہے آج ہم دین سے دور ہیں، ان علماء سے دور ہیں۔ خدا کی قسم جب تم عالم بنو گے، اللہ اکبر مسلمانوں، آپ کو نماز کا طریقہ بھی آ جائے گا، جب تم عالم بنو گے خدا کی قسم وضو کا طریقہ بھی آپ کو آ جائے گا، جب تم عالم بن جاؤ گے آپ کو مکمل سارے طریقے آ جائیں گے، اور جب تم علم دین حاصل نہ کرو گے نہ تم سے نماز کا طریقہ ہے، نہ تمہیں وضو کا طریقہ ہے، نہ تمہیں غسل کا طریقہ ہے، نہ تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے شرائط ہیں، ان ساری چیزوں کا پتہ آپ کو تبھی چلے گا جب تم علم دین سیکھنے کی کوشش کرو گے۔ آج لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، مدرسے دیگر قومیں بھی مدرسوں کو مٹانا چاہتی ہیں، ہم بھی مدرسوں کے نام پر لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کے چند منٹ لینے کی اور کوشش کروں گا، ذرا سنیں یہ مدرسے کیا ہیں، جانتے ہو ان مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ان مدرسوں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ جی یہ علماء حفاظ قرآن آپ دیکھ لینا، دارالعلوم محمدیہ حنفیہ میں آ کے یہ بچے صبح کو فجر سے پہلے اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ، فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ناشتے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ظہر سے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر کھانا کھایا آرام کیا، عصر سے پہلے ظہر کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر آرام کیا گھومے ٹہلے، پھر بعد نماز مغرب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر بعد نماز عشاء رات کو 11 بجے تک یہ مدرسے کے طلبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ذرا سنیں ایک حافظ قرآن کی شان کیا ہے، ایک حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد
इरशाद फरमाते हैं, जब एक कुरान पढ़ने वाला, जब एक इल्म दीन सीखने वाला उलमा की दुआएं चाहूंगा, अगर हदीस पाक अल्लाह अकबर आपके दिलों को छू जाए तो आप दुआएं जरूर दे के जाना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब एक आलिम दीन, इल्म हासिल करने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला अपने घर से दुआएं चाहूंगा, अपने उस्ताद की जानिब जाता है। अगरचे वो उस्ताद अपने घर है तो उस घर की जानिब, अगरचे उस्ताद मस्जिद में है तो मस्जिद की जानिब, अगरचे उस्ताद मदरसे में है तो मदरसे के जानिब। अब जरा सुन, इस हाफिज कुरान का मकाम क्या है, इस इल्म दीन सीखने वाले का मकाम क्या है, बुखारी शरीफ पढ़ने वाले का मकाम क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये हाफिज कुरान कुरान को सीने से लगा के जब अपने असातिज़ा की बारगाह में जाता है, अपने मदरसे की तरफ जाता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस इल्म दीन हासिल करने वाले को, इस कुरान पढ़ने वाले को हर एक कदम पर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर एक कदम पर अल्लाह इसको 1 साल की नफली इबादत का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जितने कदम उसके उस्ताद के घर तक या मदरसे या मस्जिद तक पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह इस कुरान पढ़ने वाले को, इल्म दीन सीखने वाले को हर एक कदम पर 1 साल की नफली इबादत से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और आगे मेरे नबी फरमाते हैं, 1 साल की इबादत का सवाब नफली अता फरमाता है, और अल्लाह हर एक कदम के बदले जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जरा सुने, इन उलमा का मकाम और मर्तबा क्या है। आज अगर किसी अमीर का इंतकाल हो जाए तो उसके करीबी ही उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, उसके पड़ोसी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, उसके रिश्तेदार उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। लेकिन जब एक आलिम दीन का इंतकाल होता है, एक हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, जब किसी आलिम दीन का या इल्म दीन हासिल करने वाले का इंतकाल होता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसके रिश्तेदार भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, बल्कि अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं मगफिरत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए, ये उलमा की जमात मिंबर रसूल की रौनक में इजाफा कर रही है। आप इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नेकियों में इजाफा करें। मैं चंद मिनट आपके लेना चाहूंगा, बहुत जल्द अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब किसी आलिम दीन का या इल्म दीन हासिल करने वाले का इंतकाल होता है, तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते ही नहीं उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं, बल्कि समंदर में तैरने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है, दरिया में रहने वाली मछलियां भी उसके लिए दुआएं मगफिरत करती है। ऐ लोगों, आप अंदाजा लगाओ एक हाफिज कुरान का मकाम क्या है, एक इल्म दीन हासिल करने का, एक इल्म दीन हासिल करने वाले का मकाम और मर्तबा क्या है। आओ जरा जल्दी से सुन लो, ये उलमा की जमात है। जानते हो कयामत के दिन इनकी शान क्या होगी, इनका मकाम और मर्तबा क्या होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल माहिरु बिल कुरानी मअ सफवातिल किरामिल बररा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन कुरान का आलिम मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। सुभान, ये मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, ये उलमा मौजूद है। कुरान का आलिम क़यामत के दिन मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। इसलिए हमें जरूरी है हम उलमा का कुर्ब हासिल करें, इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। और एक बड़ी प्यारी हदीस से पाक में आप तक और पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आखिर आपको एहसास हो जाए इन उलमा का मकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह अल्लाह मेरे आका की शान देखे, मेरे आका का मकाम और मर्तबा देखे। आका की बारगाह
में आका के एक सिहाबी बैठे हैं, जरा जोर से बोल दो सुभान सुभान अल्लाह, मेरी सुभान आदत अल्लाह। नहीं बार बार सुभान अल्लाह कहलवाने की। आप अच्छा सुन रहे हैं, जितने लोग अच्छा सुन रहे हैं वाकई, जरा दोनों हाथ उठा के बोलने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह पाक हम सबको इल्म दीन की दौलत अता फरमाए। अब जरा सुने, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। आका की बारगाह में एक सिहाबी बैठे हैं, आका से कलाम कर रहे हैं, आका से बातचीत कर रहे हैं, और मेरे आका से गुफ्तगू का उनको शर्फ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है। हदीस पाक की रोशनी में जरा सुने, उसी वक्त हजरत जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं, और जो आपके सामने आपकी बारगाह में जो आपके सिहाबी बैठे हैं, आका कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा, कुछ देर में इनका इंतकाल हो जाएगा। मेरे आका ने जब इतना सुना, सुनकर अपने सिहाबी से फरमाया, ऐ मेरे सिहाबी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, कुछ देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। अगर हमसे कोई ये कह दे तुम्हारा एक दिन के बाद इंतकाल हो जाएगा, या 1 महीने के बाद इंतकाल हो जाएगा, या 1 साल के बाद इंतकाल हो जाएगा, हम पसीना पसीना हो जाएंगे, डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। लोग मौत से डरते कि कब्र में क्या होगा, कब्र में क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, मौत से वही डरता है जो कब्र की तैयारी, मौत की तैयारी नहीं करता। अरे मौत से नहीं डरना चाहिए, इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में जिस नबी पे हम दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, जिस नबी की मोहब्बत दिल में बसा के जिंदगी को गुजारते हैं, बाद मरने के कब्र के अंदर उसी नबी का दीदार हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जैसे ही मेरे नबी ने अपने सिहाबी से कहा तुम्हारा कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाएगा, वो सिहाबी डरे नहीं, पसीना पसीना ना हुए, घबराए नहीं, बल्कि नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा कुछ देर के बाद इंतकाल हो जाएगा तो आका मुझे कोई अमल बता दो, कोई वजीफा बता दो, ताकि मैं उस अमल को कर रहा हूं और मेरी रूह तन से जुदा हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। मेरे नबी की बारगाह में जब सिहाबी ने इतना अर्ज किया, इतना सवाल किया, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम ये चाहते हो कोई अच्छा अमल करते करते इंतकाल कर जाओ, अच्छा वजीफा करते करते इंतकाल हो जाओ। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तुम इल्म दीन हासिल करना शुरू कर दो, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। जब तुम कुरान पढ़ते पढ़ते इल्म दीन हासिल करते करते इंतकाल कर जाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और अल्लाह तुम्हें जन्नत भी। और एक हदीस पाक का मफहूम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम इल्म दीन हासिल करते करते इंतकाल कर जाओगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह तुम्हें जन्नती भी बना देगा और अल्लाह तुम्हें शहादत का मर्तबा भी। यह है मुसलमानों इल्म दीन की बरकत, बेशक, जिसको आज हम हासिल नहीं करते, जो हमारे समझ के बाहर है। हम आलिमों के करीब नहीं होते। खुदा की कसम, आलिम दीन दुनिया में भी इज्जत के साथ रहता है और कल क़यामत के दिन भी खुदा की कसम आलिम को बड़ा मकाम और मर्तबा। हम कुरान नहीं पढ़ते, आ रहा है रमजानुल मुबारक का महीना, अगर यानी 2-4 मुतशाबे इमाम को कुरान सुनाते सुनाते आ जाए ना, तो बाहर आके चैमे गोइयां होती हैं, चुगलियां होती हैं इमाम की, जिसके पीछे अभी नमाज पढ़ के आए कि इस साल तो मजा नहीं आ रहा, आवाज बैठी हुई है, आज इस कौम को न जाने क्या हो गया। अपने इमामों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिसके पीछे नमाज पढ़ी मस्जिद के बाहर आकर उसकी बुराइयां करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, उसकी गीबत करते हैं। अल्लाह जानते हो क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिन लुमज़ा, रब फरमाता है खराबी है उस इंसान के लिए जो अपने भाई की पीठ पीछे बुराई क्या करता है, और जो चुगली करता है वो भी इमाम की चुगली। खुदा की कसम, जानते हो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मिशकात शरीफ की हदीस पाक सफा नंबर
413 पे गालिबन मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन कान ज़ा वजहैनी फिद दुनिया कान लहू यौमल क़ियामा लिसानुम मिन नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया के अंदर जो दो मुंह वाला होगा क़ियामत के दिन उसकी ज़बान में जहन्नम की आग। मुंह से मुराद नबी फरमाते हैं दुनिया में जो चुगली करता होगा, गीबत करता होगा, ऐसे इंसान की जबान में क़ियामत के दिन जहन्नम की आग को भरा जाएगा। ऐ लोगों, हमसे दुनिया में आग बर्दाश्त नहीं होती, हम जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त? खुदारा अपने उलमा की कदर करो, अपने इमामों की इज्जत करो। इमाम पे अगर 4 पहिया गाड़ी है अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये कहा करो अल्लाह ने हमारे इमाम को 4 पहिया गाड़ी दी है, अल्लाह हमें भी अता फरमाए। अगर तुम उसकी गाड़ी से हसद करोगे या अपने पड़ोसी की गाड़ी से हसद करोगे या अपने भाई की तरक्की से हसद करोगे तो उस हसद से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को तरक्की करता हुआ देखो तो उसके लिए भी दुआएं किया करो और अपने लिए भी। जरा सी बातों पर इमामों का खात्मा कर दिया जाता है, मस्जिद से निकाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ना जाने लोगों ने उलमा को क्या समझ रखा है। खुदा की कसम मुसलमानों, ये वही मस्जिद का इमाम है। जब तुम्हारे बाप का इंतकाल होता है यही मस्जिद का इमाम तुम्हारे बाप के लिए मगफिरत की दुआएं करता है। जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो रात के 12 बजे या दिन के 12 बजे यही मस्जिद का इमाम तुम्हारे बच्चों के कानों में अजान पढ़ता हुआ नजर आता है। अरे ये वही इमाम है, ये वही उलमा है। जब तुम्हारे बाप की रूह निकलने में तुम्हारे बाप को तकलीफ होती है, तुम इसी मस्जिद के इमाम के पास आते हो। इमाम अगर सो रहा हो तो बड़े अदब के दायरे में आके कहोगे उस वक्त तो हजरत जरा चलिए बाप के इंतकाल का वक्त करीब है, रूह निकलने में तकलीफ है, जरा चल के यासीन शरीफ पढ़ दे, सूरह रहमान पढ़ दे ताकि कुछ सुकून भागो। इमामों की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करो। दुनिया में उलमा की मोहब्बत कल क़यामत के दिन तुम्हारे, इमामों की खिदमत कल क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। मैं अर्ज ये कर रहा था हमने कुरान को हल्का समझा, हम कुरान को ताकों में सजा के रख रहे हैं, कुरान नहीं मुसलमानों कुरान नहीं पढ़ रहे हैं। बस मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जिला के मोहब्बत से बोल दे या रसूल अल्लाह और हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। लेकिन शायद तुम ये भूल गए ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह इखलास है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले अल्लाह उसको एक कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है। जो दुनिया में सूरह मुल्क की तिलावत करके सोगा बाद मरने के कब्र के अंदर चैन और सुकून से रहेगा। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह वाक़िया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोता है अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर फरमा दिया करता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम यासीन शरीफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर चीज का दिल है और कुरान का दिल यासीन शरीफ है। मिशकात शरीफ के अंदर आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया जो एक मर्तबा दिल से सवाब की नियत से कुरान की यासीन शरीफ की तिलावत करता है अल्लाह उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। हजरत ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसको दज्जाल के फितने से महफूज रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दज्जाल के फितने से भी वो महफूज रहेगा जो रोजाना सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों की तिलावत करेगा। अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर कर देगा जो रोजाना सूरह वाक़िया की तिलावत करके सोएगा। आज हम कुरान से दूर हैं। कुरान कहाँ पढ़ते हैं? इमाम साहब अगर पाव पारा आधा पारा तरावियों में ज्यादा पढ़ दे तो 20वीं रकात का सलाम होते ही हंगामा मसाजिदों में हंगामा। लोग सर पे उठा लेते हैं मसाजिदों को। हमें हो क्या गया है? हम क्या इबादत कर रहे हैं? लेकिन खुदा की कसम आओ सुनो, आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जिनके हम मसलब की पैरवी करते हैं। करोड़ों हनफियों के इमाम रमजानुल मुबारक के महीने में 61 कुरान मुकम्मल करते थे। बोल दो सुभान अल्लाह। 61 कुरान मुकम्मल करते थे। बोलाओ जिला के मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। कितने कुरान? 61 कुरान
जानते किस तरीके से? 30 कुरान दिन में पढ़ते थे, सुभान अल्लाह, और 30 कुरान रात में पढ़ते थे, सुभान अल्लाह, और एक कुरान नमाज तरावी में अदा करते थे। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है। आपने हुजूर गौसे आजम के बारे में तो सुना होगा कि गौसे आजम ने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा, लेकिन हो सकता है आपने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से ना सुना हो। इमाम आजम अबू हनीफा ने 45 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज को पढ़ा है। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिन्होंने गालिबन अपनी जिंदगी में 55 हज किए, सुभान अल्लाह। और यही वो इमाम आजम अबू हनीफा है जिस मकान के अंदर आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ, इंतकाल से पहले पहले आपने उस मकान में 7000 मर्तबा कुरान मुकम्मल कर लिया, सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम अहले सुन्नत जानते क्या फरमाते हैं? इमाम अहले सुन्नत बरेली के इमाम आला हजरत फरमाते हैं इमाम आजम अबू हनीफा का 30 साल का मामूल था। आप रोजाना यानी हर रात पहली रकत में एक कुरान मुकम्मल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका ये मामूल था 30 साल का, आप पहली रकत में और हर रात एक कुरान पाक मुकम्मल कर दिया करते थे। लेकिन आज हम 1.5 पारा 2 पारे नहीं सुन पाते, उसमें भी तब रुकू में जाते हैं जब इमाम साहब रुकू में चले जाए। खुदा की कसम तराबियों को अदब के दायरे में पढ़ा करो, कुरान से मोहब्बत किया करो, कुरान को पढ़ने की कोशिश किया करो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे जिनसे कुरान पढ़ना नहीं आता, यार हम कुरान पढ़ लेते तो क्या होता। तो अभी आपका दिन, आपका वक्त नहीं गुजरा है, आपकी अभी उम्र खत्म नहीं हुई, अभी आपका इंतकाल न हुआ। आप अगर अब भी चाहें तो कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान को सीख सकते हैं, इल्मे दीन सीख सकते हैं। अगर फिर भी आपसे कुरान न पढ़ा गया तो खुदा की कसम एक रिवायत के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, अगर आप कुरान नहीं पढ़ते तो कुरान को सीने से लगाओ, कुरान से मोहब्बत किया करो, फिर भी आपको फायदा क्या होगा जानते हो? जो कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान से प्यार करता है, उसको क्या मिलता है जरा सुने तवज्जो के साथ और अमल करने की कोशिश करे। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में लगातार बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सुने सुने तारीख बताती, एक जगह एक बस्ती में किसी का इंतकाल हो गया, लोगों ने उसके कफन दफन की तैयारियां शुरू कर दी। जब उसकी कब्र तैयार हो रही थी तो बराबर बाली कब्र फट गई और सरहाने की जानिब एक सुराख हो गया। लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने देखा कब्र के अंदर कफन सही सलामत है, कब्र के अंदर मुर्दा सही सलामत है। खुदा की कसम लोगों ने पहचाना ये किसकी कब्र है, तो कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे, उन्हें ये खबर हो गई, उन्हें ये मालूम हो गया ये फला शख्स की कब्र है। अल्लाह अल्लाह, लोगों ने अपने अजीज की तदफीन को मुकम्मल किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, मद्दाह रसूल आनाम जनाब फहीम अख्तर साहिब क़िबला बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। शाहकार तरन्नुम वासिफ शाह हुदा हजरत मौलाना फहीम अख्तर साहिब क़िबला बरेलवी तशरीफ ला चुके, इन्हीं का इंतजार था। इंशाअल्लाह मेरे फौरन बाद इनका आना और मेरा जाना समझ लो पक्का है। बस ये जो बात मैंने आपके सामने रखी इसको सुन लें, 1-1.5 मिनट के अंदर मैं इस बात को बता दूं। मैं बता रहा था लोगों ने अपने अजीज को दफना दिया कब्र के अंदर और फिर लोग उसके घर पे पहुंचे और जाके दरवाजा खटखटाया तो उस शख्स की बेवा जो उस वक्त बूढ़ी हो चुकी थी, जानते उससे जाके क्या रहा? लोगों ने कहा जरा ये बता दो तुम्हारे शोहर का अमल, तुम्हारे शोहर का अमल क्या था? कहा ऐसे ऐसे मामला, सारी बात बताई। तो उस बेवा औरत ने, बूढ़ी औरत ने कहा मेरे शोहर का कोई खास अमल नहीं था, मेरा शोहर न कुरान पढ़ना जानता था, जिस तरीके से दीगर लोग नमाज पढ़ते थे मेरा शोहर भी नमाज पढ़ता था, जिस तरीके से लोग कुरान पढ़ते थे, जिस तरीके से लोग रोजे रखते थे मेरा शोहर भी रोजे रखता था। लेकिन हाँ एक बात मैंने अपने शोहर की देखी। लोगों ने कहा कौन सी बात? हाँ मेरा शौहर कुरान पढ़ता नहीं था, कुरान उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा अक्सर मेरा शौहर वुजू बनाने के बाद कुरान को सीने से लगाता था, कुरान को खोल के अपने सामने रख लिया करता था और कुरान को खोलने के बाद कुरान
की हर लाइन पर अपनी उंगलियों को फेरता जाता था, कहता जाता था, ए मौला मुझसे कुरान तो पढ़ना नहीं आता, लेकिन तूने जो फरमाया है ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। वो खातून बेवा औरत कहती है मैं इस तरीके से देखती थी और मेरा शौहर इसी तरीके से पूरा कुरान मुकम्मल कर देता था। हो सकता है अल्लाह को मेरे शौहर की यही अदा पसंद आ गई। तभी तो किसी ने कहा जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। रब कुरान में फरमाता है ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मुझे फौरन तकरीर के बाद कहीं जाना है। अब आप इंशाअल्लाह फहीम अख्तर साहिब के बिला को सुने। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूं मौला, सुनने सुनाने में जो भी गलती हो अपनी